गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे से बच्चों। मैं हर्ष आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टीचर। आई विल टेक आइसोमेरिज्म लेक्चर नंबर 1 ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टुडे। तो ये क्लास जो है रिकॉर्डेड है। मॉर्निंग में क्लास हुई थी लेकिन ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, मे बी 30 मिनट्स का टॉपिक है। ठीक है, so we will complete it. Then from tomorrow onwards we will start the hydrocarbons of alkanes, alkenes, alkynes, alcohol and carboxylic acid. That will be remaining chapter. Since your board examination is very near, we have to complete the course. Okay, so for you few lines are there. लग चुकी है अब तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, ठोकरें क्या कहती हैं? मारा जाएगा। लेकिन हौसले कहते हैं देख लेंगे, है ना? सो वर्क हार्ड। ठीक है, वॉच दिस रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ओके, सो आवर मेन टॉपिक फॉर टुडेज, okay, isomerism. Isomerism in structural or and chain air versus position. Few more isomerism are there, that is functional. Okay, few more are there, that is functional. ठीक है, functional is there, and few more isomerism you can say. I will tell you many types while discussing. Some metamerism is there. ठीक है, metamerism. So many types merisms are there that we will discuss today. ठीक है, so let's start. Okay, I hope my copy is visible to you. Please turn your phone, okay, to get the proper view of my copy. Uh, Starting from very basic, I will give you first of all what is isomerism. So till now we know what is organic compounds. Organic compounds means the compound made up of carbon and hydrogen is called as organic compounds. So some compounds they have this property that they have a same molecular formula. Okay, they have same molecular formula but different structures, or you can say but different structural formula. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? आइसोमर्स। दैट विल बी कॉल्ड एज आइसोमर्स, एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म। ठीक है, और जो आइसोमर्स का फिनोमिना होता है, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज आइसोमेरिज्म. Remember these points. Organic compounds, some organic compounds they are having same molecular formula but their structural formula will be different. That term is called as isomers and the phenomena will be called as isomerism. The word iso, ठीक है, the word iso means same. ठीक है, and word meros, this merism is coming from Greek word meros which means parts, means सेम पार्ट्स. ठीक है, तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा. ठीक है, इसकी कुछ और बातें कर देते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट. ठीक है, जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, अगर एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मान लीजिए है, ठीक है, अभी मैं एग्जांपल दूंगा, कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसके दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं. ठीक है, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, तो उन दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही अलग होगी. अभी मैं उसको डिस्कस करता हूं कैसे वो अलग होगी. ठीक है, आइए पहले हम आइसोमेरिज्म के टाइप्स पे डिस्कशन करते हैं. आइसोमेरिज्म ब्रैकेट में लिख लीजिएगा टाइप्स. ओके, so let's move. Isomerism is of two types: structural and second is geometric.
ठीक है. Sometimes it will be also called as optical. Sometime it will be called as stereoisomerism. ठीक है. Sometime it will be called as space isomerism. Okay, so but we have to study only structural isomerism according to our syllabus. According to our syllabus, this we have to study. It is our MIT is what? Structural formula. This is not a part of our syllabus. तो आइए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के डिफरेंट चीजें उनकी जो टाइप्स है वो देखते हैं. तो पहला चेन हो जाएगा, दूसरा पोजीशन हो जाएगा. बोर्ड ने सिर्फ ये दोनों पढ़ने को कहा है, बाकी चीजें नहीं कही है. दैट इज फंक्शनल ग्रुप, सॉरी फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म. और भी टाइप्स हैं, देख लीजिए. रिंग चेन, ठीक है. यहां से एक और टाइप में निकाल देता हूं. दैट इज टाउटियोमेरिज्म. ठीक है. But according to the board, we have to study chain isomerism, position isomerism. But sometimes boards even asking question with respect to functional isomerism also. That also I will teach you. And few introduction to metamerism also I'll give you. Ring chain and taurutism will be coming in 11th standard. 11th standard में there is one separate chapter for isomerism. ठीक है. But we have to mainly we will focus on chain isomerism as well as position isomerism, which board has told that student need to understand this. Clear? Okay. Now we will understand causes of isomerism. Then we will understand different types of isomerisms in detail with several type of examples we will understand. So what are causes of isomerism? The first cause you have to understand difference in arrangement. What difference in arrangement of atoms or groups in space? Remember this point. This reason is a cause of, okay, or this type of isomerism is called stereoisomerism. That is second type, which is not in your syllabus. Even board also never asks these questions. But even though I am telling you, try to understand this. Different in arrangement of atoms or groups in space. So let's, for example, I will discuss one example. That is 1, 2 dichloroethene. I will draw a structure. You know already to draw a structure. In my nomenclature chapter, I have discussed how to draw a structure. So just what we are here doing, here we are just changing the positions, isn't it? इस क्लोरीन की पोजीशंस हमने चेंज कर दी, तो ये हमारा आइसोमेरिज्म हो गया. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट एटम्स के होंगे, ठीक है. उसी को हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म का रीजन कहते हैं कि अगर आप एटम्स को, ठीक है, डिफरेंट तरीके से अरेंज कर दें दो स्ट्रक्चर में, तो वो आइसोमेरिज्म हो जाता है. ये दिस इज नॉट मच मोर इम्पोर्टेंट, बट सेकेंड पॉइंट इज मच मोर इम्पोर्टेंट. यू कैन राइट MIT. Okay, you will write MIT. Difference in mode of linking of atoms. Difference in mode of linking of atoms. ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को, बहुत इंपॉर्टेंट है. डिफरेंस इन मोड ऑफ लिंकिंग ऑफ एटम. फॉर एग्जाम्पल C4H10O. It stands for ईथर. यू नो ईथर फंक्शनल ग्रुप. ईथर फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है? ऐसा. ठीक है. तो वही चीजें यहाँ पे हो रही है. ईथर. ठीक है. तो ये तीन टाइप के आइसोमेरिज्म शो करता है. देखिए C2H5O, C2H5. इसको हम क्या कहेंगे? डाई इथाइल ईथर. डाई इथाइल ईथर.
CH3O, C3H7 ये भी शो करता है। इसको हम कहते हैं मीथाइल प्रोपाइल ईथर। एक और शो करता है, देखिए CH3O, CH का होल ट्वाइस। इसको हम क्या बोलते हैं, मीथाइल आइसोप्रोपाइल। इसको नाम आपको याद करना पड़ेगा, मैं नेमिंग इसका नहीं सिखा सकता, ठीक है। नॉमेनक्लेचर पढ़ रखा है तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो ये देखिए पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन आप देख सकते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो जा रहा है। तो यही कहा है डिफरेंस इन मोड ऑफ लिंकिंग ऑन एटम। अलग अलग से तरह के एटम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से अलग अलग तरीके से अटैच हो चुके हैं, वही डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। उसी टाइप के आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये जो टाइप था ये स्टीरियो था, लेकिन ये वाला जो टाइप है वो कौन सा है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो ये आपको याद रखना है, बोर्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, टेल मी द कॉज ऑफ आइसोमेरिज्म ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो आप यहाँ कह सकते हो डिफरेंस इन मोड ऑफ लिंकिंग ऑफ एटम। उसका एक सिंपल सा एग्जांपल दे देते हो, C4H10O ईथर, डाई इथाइल ईथर, मिथाइल प्रोपाइल ईथर, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। स्ट्रक्चर आप याद कर लेना, ठीक है। ओके, आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई। जो चीजें नहीं समझ में आएंगी, नेक्स्ट टाइम आई विल बी कमिंग इन द क्लास, लाइव क्लास, यू हैव टू आस्क मी दैट इन द लाइव क्लास। क्लियर? आई, अब हम डिस्कशन करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आइए पहला हम जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी चेन आइसोमेरिज्म। ओके, व्हाट इज चेन आइसोमेरिज्म? जब दो या दो से अधिक कंपाउंड के पास सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, ठीक है, सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, बट दे विल बी डिफरेंट in arrangement of, they will be different in arrangement of carbon atoms, okay, then that will be called as chain isomers. Okay, this terms will be called as chain isomers. But the phenomena, okay, but the phenomena will be called as chain isomerism, ठीक है, but the phenomena will be called as chain isomerism. चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है, ध्यान से सुनिए। जब दो या दो से अधिक कंपाउंड के पास सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट होगा, चाहे सिंगल या ब्रांच चेन में अरेंज हो जाएगा, मतलब अलग अलग तरीके से वो अरेंज हो जाएगा, तो उस फिनोमिना को हम सॉरी टर्म्स को चेन आइसोमर्स कहते हैं और फिनोमिना को चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। हियर वी विल डिस्कस द एग्जांपल पेंटेन, PENTAN, पेंटेन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका फॉर्मूला C5H12, आई होप आपको याद हो चुका होगा, C5H12। इसका अगर पहला स्ट्रक्चर दिखाऊं तो CH3, CH2, CH2, CH3, CH, सॉरी, 3 2 5 6 7 8 9 10। Okay, here it will be 2, here it will be 3. Okay, then CH3, CH2, 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 CH3, इसको हम पहले पेंटेन कह देते हैं। एक और पेंटेन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, CH3, CH, CH2, CH3, CH3 ऐड कर दो। तो देखिए ब्रांच्ड चेन या फिर सिंगल और ब्रांच चेन में डिफरेंट आ गया, अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम में डिफरेंस आया कि नहीं, स्ट्रक्चर दूसरा बना, इसको हम आइसोपेंटेन कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोपेंटेन। इसकी नेमिंग करिए, ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा 1 2 3 4, सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलेगा इधर से, तो इसका हो जाएगा 2 पे क्या अटैच है, मिथाइल अटैच है, इसको ब्यूटेन कह सकते हैं, BUTA यानी ब्यूटेन, तो इसका IUPAC नेम ये हो गया। इसका एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है, CH3, 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 इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है।
इसको नियोपेंटेन कहते हैं आइसोमेरिज्म के टर्म में, नियोपेंटेन। इसकी नेमिंग शुरू की जाए तो ये देखिए 1 2 3, 2 पे क्या प्रेजेंट है, 2 2, डाई मिथाइल, 2 मिथाइल प्रेजेंट है, ठीक है, डाई मिथाइल प्रोपेन, PROPANE, डाई मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। दिस इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, ठीक है। पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम। इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। आई होप ये एग्जांपल बहुत ही क्लियर हो चुका, ठीक है। अगर ये क्लियर हो चुका है तो फिर ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आप मुझसे एक बार फिर से डिस्कस करेगा। मैं एक और एग्जांपल डिस्कस करता हूं, दैट इज ब्यूटेन C4H10। तो आइए ब्यूटेन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ब्यूटेन के पास 4 कार्बन एटम्स होते हैं, ठीक है। जितने कार्बन एटम्स, ठीक है, एल्केन के केस में उसका आधा स्ट्रक्चर बनेगा। अगर ये चीजें नहीं क्लियर हो रही तो वैसे बहुत कम आइसोमेरिज्म आपके टॉपिक में है, तो आप सिंपल सा याद भी कर सकते हो, ठीक है। ब्यूटेन के बारे में देखते हैं। 4 कार्बन, ठीक है, इस तरह भी अरेंजमेंट हो सकता है कि नहीं? एम आई करेक्ट? यस सर, यू आर करेक्ट। यस बेटा, आई एम ऑलवेज करेक्ट, ठीक है। तो ये ब्यूटेन है ना, ये ब्यूटेन है कि नहीं? इसको नॉर्मली आप ब्यूटेन कह दो, ठीक है, ब्यूटेन कह दो। सिंपल सा पहला स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, ठीक है। आइसोब्यूटेन, ठीक है, इसका ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, C4H10 होगा, ठीक है। आइए इसको बना देते हैं। तो CH3, CH, CH3, यहां पे CH3 अटैच कर दिया। इसको आइसोब्यूटेन कहते हैं, ठीक है। 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, इसका IUPAC नेम देखा जाए तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन, है ना। 3 कार्बन है, 1 2 3, दूसरे पे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका IUPAC नेम है, ठीक है। तो दो, ठीक है, आइसो मतलब एटलीस्ट 1 कार्बन इज अटैच टू 3 अदर कार्बन एटम्स। आप पूछ रहे हो सर यहाँ आइसो क्यों लगा है, तो इसका मतलब लिखिए एटलीस्ट 1 कार्बन, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके। अब देखिए एटलीस्ट 1 कार्बन इज अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन एटम्स, उसी को आइसो कहते हैं। इस केस में भी देखिए एक कार्बन, ठीक है, इस केस में एक कार्बन, बाकी दो या एक से अधिक कार्बन से अटैच था, ठीक है, तो उसको आइसो नाम दे दिए थे। तो आइस पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा। ब्यूटेन के केस में भी याद कर लीजिए, आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आइसो का मतलब बता दिए तो नियो का भी मतलब बता दो। बता देते हैं बेटा, आपकी जैसी इच्छा हो। तो एटलीस्ट 1 कार्बन एटम, ठीक है, सी मतलब 1 कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन एटम, 4 अदर कार्बन एटम, ठीक है। एक कार्बन एटम एटलीस्ट 4 कार्बन एटम से अटैच्ड होता है, उसको नियो कहते हैं। आई होप बच्चों ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। आप और एग्जांपल्स चाहते हो? अभी मैं और एग्जांपल डिस्कस करूंगा, पहले मैं टॉपिक्स को आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। आई होप इस चेन आइसोमेरिज्म में कोई डाउट आपको नहीं होगा। आइए सेकंड देखते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म की मैं बात करता हूं तो पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से अधिक कंपाउंड के पास सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, MF मतलब समझ जाइएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, बट दे विल बी डिफर, ओके, डिफर इन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, डिफर इन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप, FG मतलब फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। तो आप कह सकते हो दैट term is called as position isomers and the phenomena will be called as position isomerism. I hope बच्चों it is clear.
अगर ये क्लियर है तो आइए इसका एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। PENTAN3ONE, ठीक है। ONE किसका होता है? कीटोन का, है ना। PENTAN2ON। देखिए कैसे डिफरेंट है। स्ट्रक्चर में बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा। इसका भी स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं। ओके, तो आइए इस केस में देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप डिफर इन पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन डिफर कर जाएगा। क्या ये सब्स्टिट्यूएंट था? क्या ये इस साइड चला गया है इसमें? तो अगर इसकी नेमिंग की जाए तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड एन, कुछ बच गए अरे सर डबल बॉन्ड। अरे बेटा कितनी बार बता चुका हूँ, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तब वैसा केस देखते हैं, ठीक है बेटा। यस सर, ओके बेटा। सो पेंट एन, ए एन है, ठीक है, पेंट एन। उसके बाद तीसरे पे क्या प्रेजेंट है? फंक्शनल ग्रुप 3 पे ओन। इस केस में देखिए 1 2 3 4 5, क्या पोजीशन चेंज होगी? देखिए 5 कार्बन पेंट, क्या दूसरे पे अटैच है आपका ओन? यस। तो क्या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई? ठीक है। तो इस केस में ये समझ में आया, डिफर इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आइए एक सब्स्टिट्यूएंट का भी एग्जांपल ले लेते हैं, कैसे सब्स्टिट्यूएंट पे डिफर करता है, ठीक है। कैसे सब्स्टिट्यूएंट पे भी डिफर करता है इसको भी हम देख लेते हैं। तो BUT ब्यूट, 1 आइन का स्ट्रक्चर बनाओ। CH3 CH2 C, ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ब्यूट 2 वाइन का स्ट्रक्चर बनाओ। CH3 C, ट्रिपल बॉन्ड CH3। क्या आपको दिखा इसमें कुछ? 1 2 3 4 कार्बन। क्या, सॉरी इधर से नंबरिंग करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देना है, 3 4 5। सॉरी इसको नहीं, नहीं सॉरी सॉरी बच्चों, 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, 4 कार्बन है, ब्यूट 1 आइन। ध्यान से देखिएगा इसमें, इधर से नंबरिंग करेंगे 2 3 4, इधर किधर किधर से नंबर करेंगे दोनों बराबर आएगा, क्लैश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ब्यूट 2 पे आइन आएगा। तो क्या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन पे डिफरेंट आया? सब्स्टिट्यूएंट कह सकते हो, मल्टीपल बॉन्ड कह सकते हो इस केस में, ठीक है। क्या इनके ऊपर डिफरेंस आया? हाँ। तो इसी को हम पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं वो एग्जांपल याद होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चंस बोर्ड में बनते हैं इस टॉपिक्स पे, ठीक है। इस टॉपिक पे डायरेक्ट बोर्ड क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट बोर्ड क्वेश्चन बनते हैं। नहीं विश्वास है तो जब सॉल्व क्वेश्चन पेपर कराऊंगा तो देख लीजिएगा, ठीक है। डायरेक्ट बोर्ड क्वेश्चन बनते हैं। आइए थर्ड टाइप में डिस्कस कर देता हूं, इसमें ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, बस डिफिनेशन याद कर लीजिएगा। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म की बात करें, उनका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है डेट इज सेम, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन डिफरेंट इन फंक्शनल ग्रुप, डिफरेंट इन फंक्शनल ग्रुप। अब आप कहोगे सर अगर फंक्शनल ग्रुप में यहाँ पे भी डिफरेंस है तो पोजीशन और फंक्शनल में अंतर क्या है? बेटा पोजीशन में, ठीक है, पोजीशन में मैं क्या बता रहा था? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप बता रहा था, लेकिन यहाँ पे मैं फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट कर दूंगा। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट कर दूंगा। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि CH3CH2OH, CH3OCH3, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन नेम मैंने बोला था एथेनॉल, ठीक है। इसको डाई मिथाइल ईथर। नहीं याद हुआ तो याद कर लो, सारे चीजें नेमिंग सीख लो, ठीक है। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप OH, फंक्शनल ग्रुप ईथर। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? AlCOHl अल्कोहल। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईथर फंक्शनल ग्रुप है। क्या फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हुआ सर? अब आप बच्चे कहेंगे सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम तो करके दिखाओगे, इतना तेरे को आता है तो दिखा देते हैं। 2 कार्बन C2, 5 हाइड्रोजन C2H5,
OH। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है। यही केस इसमें कर C2H6O, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 1 है। क्या ये भी इसके इक्वालिटी होल्ड करेगा? ये भी सारे इक्वालिटी होल्ड कर रहे हैं। सॉरी बेटा, दिख नहीं रहा था आपको, कोई बात नहीं, अब देख लो। ठीक है, क्या सारे इक्वालिटी होल्ड कर रहे हैं? यस सर, सारे इक्वालिटी होल्ड कर। वेरी गुड बेटा, इस सारे इक्वालिटी होल्ड कर रहे हैं, मतलब उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है क्या है? सेम है। मे भी आपको ऊपर से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब नंबर ऑफ एटम्स आप काउंट करोगे ना, तो इसके नंबर ऑफ एटम्स, इसके नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स मीन्स टोटल नंबर ऑफ एटम्स, इसके भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होंगे। अगर ये चीजें आपको क्लियर है तो वेरी गुड, नहीं क्लियर है तो क्लियर कर लो। ठीक है, मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म की मैं बात करता हूं। ये क्यों होता है? इट अराइजेस, इसको मेनली स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के अंदर नहीं डालना चाहिए, लेकिन फिर भी डाल दिया गया है। ये मेटामेरिज्म एक अलग सा टॉपिक हो जाता है, जैसे आइसोमेरिज्म ना, वैसे मेटामेरिज्म। ये क्यों अराइज होता है? इट अराइजेस ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्काइल ग्रुप, ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डी, ओके लेट मी राइट, अदरवाइज कहोगे मास्टर को इंग्लिश नहीं आती है। इट अराइजेस ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। ठीक है, एल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, कैसे? ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ओके बच्चों, ओके, आइए इसके भी एग्जांपल मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, जैसे कि देखते हैं CH3O, C3H7, C2H5O, C2H5। कुछ बच्चे कह रहे होंगे ना, सर हमको तो एल्काइल ग्रुप ही नहीं आता, अब हम क्या करें, हम तो भूल गए। आइए बेटा, रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, रिवीजन करा रहा हूँ तो मतलब कुछ फायदा आपको होना चाहिए। एल्काइल मतलब इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एल्केन, एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, क्या बन जाता है? एल्काइल बन जाता है। ये रिवीजन पार्ट है। ठीक है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, क्या बन जाता है? एल्काइल बन जाता है। ध्यान से देखना, इसका फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। इसने एक हाइड्रोजन निकाला तो इसका फॉर्मूला CnH2n, इसका फॉर्मूला CnH2n+1 हो जाता है। जैसे कि CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाला तो CH3, है ना? यस, फिर C2H2 2 4 2 6 इसमें से निकाला तो C2H5 हो जाता है सर। हाँ सर, एकदम आपसे बोले C3 3 2 6 1 7 8, C3H8 में से एक हाइड्रोजन निकाला तो C3H7 बन जाता है। तो ये अल्काइल ग्रुप होते हैं बेटा। ठीक है, अब आपको आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। ये क्लियर है तो आइए इस एग्जांपल को हम डिस्कशन में ले लेते हैं। क्या ये ईथर ग्रुप प्रेजेंट है? क्या ये भी ईथर ग्रुप प्रेजेंट है? तो इसके अलोंग डिफिनेशन क्या आपको कहता है? ये क्यों अराइज होता है? ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। इधर एल्काइल ग्रुप क्या है? मीथाइल है। इधर क्या है? इथाइल है। तो इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे? मेटामेरिज्म। इधर भी देख लो, C2H5O, C2H5। ठीक है, यहाँ पे भी वही केस हो रहा है। ठीक है, इसको इसको अगर नाम दिया जाए तो एथो ऑक्सी इथेन होता है। ठीक है, एथॉक्सी इथेन, इसको कॉमनली डाई इथाइल ईथर कहा जाता है। ठीक है, इसको अगर नाम दिया जाए तो METH, मेथ ऑक्सी प्रोपेन होता है। बेटा जो नॉमलिकेचर नहीं पढ़ा है उसको दिक्कत हो रहा होगा, कोई बात नहीं बेटा, आप पढ़ लो, अपने लिए पढ़ोगे, मेरे लिए नहीं। ये सारी चीजें याद करनी है, मैं इसलिए डिटेल में नहीं, क्योंकि आप समझ नहीं पाओगे। अगर मैं शुरू कर दूं ये बताना तो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आपके सिलेबस का नहीं है। तो ये चीजें याद रखिए। ठीक है, मेथ ऑक्सी प्रोपेन इसका नाम जो है इस कॉम्पाउंड का। ठीक है, और ये बाकी चीजें आप तो समझ गए क्यों अराइज होता है, बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्काइल ग्रुप्स ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो एक छोटा सा टॉपिक था, ठीक है, इस चैप्टर का, जो कि ऑलमोस्ट मैंने कवर कर दिया है। मैंने इसको अलग से चैप्टर में तोड़ा, क्यों? यही सारी चीजें समझाने के लिए। ठीक है, एक मिनट में देख लेता हूं अगर कोई और आइसोमेरिज्म आपके सिलेबस में है तो दैट आल्सो आई विल डिस्कस।
वेट बेटा, तब तक आप रिवीजन करो जो चीजें मैंने पढ़ाई थी। और कोई आइसोमेरिज्म नहीं है, इतना आइसोमेरिज्म काफी है। अगर एल्कीन्स एल्काइंस में आता भी है फिर से, ठीक है, तो दैट आई विल एक बार फिर से आइए रिवीजन कर लेते हैं आइसोमेरिज्म होता क्या है, ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूलास, उस टर्म को आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है। फिनोमिना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में मैंने बताया, ठीक है। उनका कॉज बताया, ये कॉज याद रखना है, डिफरेंस इन मोड ऑफ लिंकिंग ऑफ एटम, ठीक है। स्ट्रक्चर आप खुद पढ़ लेना, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया आई थिंक सो। चेन आइसोमेरिज्म, सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। उसका पेंटेन ब्यूटेन का एग्जांपल बताया। पोजीशन आइसोमेरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड, ध्यान रखिएगा ये वर्ड पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। मैंने पेंटेन का एग्जांपल बताया, ठीक है। मैंने ब्यूटाइन का एग्जांपल बताया। फिर डायरेक्ट बोर्ड क्वेश्चन पूछता है, इस चीज से इतना ध्यान रखिएगा। आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 से 5 नंबर पा जाओगे अगर ये याद कर लिया तो। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, डिफरेंट इन फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वहां पोजीशन की बात कर रहा था, यहाँ फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट कर दे रहा है, ठीक है। एथेनॉल, और मैंने ईथर की इस वक्त की बात की, डाइमीथाइल ईथर की, ठीक है। मेटामेरिज्म मैंने बताया क्यों होता है, इट अराइजेस ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। मैंने ईथर का एग्जांपल, ईथर के फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे जो मिथाइल जो एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, मैंने उसका एग्जांपल दिया। हैशटैग डन, ठीक है। अगर आप ये कर लेना तो चैट्स व्हाट्सएप पे हैशटैग डन लिखना, ठीक है। अगर आप ये रिकॉर्डेड लेक्चर कर ले। टुमारो वी विल स्टार्ट हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स ऑफ एल्केन्स, ठीक है। टाइमिंग फॉर क्लास विल बी 5:30 AM ओनली, है ना, ओके। और what will be homework for today? Revise the nomenclature and isomerism. Solve all questions of book. ठीक है, solve all questions of book. Remember this point. Okay, it's a very important part. Hashtag notes upload. ठीक है, मैं अभी व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन डालूंगा, सारे को नोट्स अपलोड करनी है किस चैप्टर की, नॉमेनक्लेचर प्लस आइसोमेरिज्म, ठीक है, बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल की, ठीक है। मैं अलग अलग सेक्शन में अपलोड करूंगा, ठीक है। तो मेक श्योर यू डू ऑल द वर्क प्रॉपरली, ओके, because this is the only time, okay, where student you can really gain a success. No more time is left for your board examinations, so our topics have been covered. That is, our topic is isomerism, okay, that we have covered. So for today, this will be much more enough. I hope you will watch this lecture very carefully. Okay. So remember this point, ये लड़ाई तुम्हारी तुम्हारे मन के साथ है, ठीक है। ये सबसे आसान भी है और मुश्किल भी, आपको पता है। कुछ इस लड़ाई को जीत जाते हैं और कुछ इसमें बीत जाते हैं। बीत जाते मीन्स कुछ इसमें हार जाते हैं। अगर जीते तो सिकंदर कहलाओगे, अगर जीते तो सिकंदर कहलाओगे, और अगर हारे तो बहुत कुछ मन में रखना पड़ेगा और किसी से कुछ नहीं कह पाओगे। ध्यान से सुनिएगा, ये लड़ाई आपकी आपके मन के साथ है, ना कि किसी और के साथ, ठीक है। ये सबसे आसान भी काम है और ये सबसे मुश्किल भी है। अगर इस लड़ाई को आप जीत जाते हैं और कुछ इसमें बीत जाते हैं, मतलब हार जाते हैं, कुछ जीत जाते हैं। अगर जीते तो सिकंदर कहलाओगे, और अगर हार गए तो बहुत ही कुछ मन में रखना पड़ेगा, बहुत सी बातें होंगी आपको मन में रखना पड़ेगा और किसी से कुछ नहीं कह पाओगे, और लोग आपको उल्टा सीधा ऑल द निगेटिव चीजें, पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा, ब्रदर एंड सिस्टर्स भी नहीं सपोर्ट करेंगे। तो मेक श्योर यू स्टडी वेरी प्रॉपरली, दिस इज रियली a very important stage of your life, that is class 10th board examination. So for this much, keep smiling and doing hard work, bachcho. Thank you.